करते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतार्जुन आर्तो जिज्ञासुदार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, आउट ऑफ दीज फोर those who are distressed and those who desire wealth are called devotees with desires, whereas others too are inquisitive and the searcher for the wisdom are seekers of the liberation. These two are seeking liberation. Because they worship Krishna, they are also considered very fortunate. In the course of time, they come in contact with a pure devotee. शुद्ध भक्त के संग में आते हैं और शुद्ध भक्त के संग में आने पर उनका हृदय पवित्र हो जाता है, और जब वो पवित्र हृदय वाले हो जाते हैं तो उनको मोस्ट फॉर्चुनेट कहते हैं। By coming in contact with the devotee, they become most fortunate. They also become pure devotee. वो भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं और तब वो अपने जीवन की सफलता और सिद्धि को प्राप्त करते हैं। They attain the perfection, being a pure devotee. So this is wonderful. किसी भी प्रकार से साधारण व्यक्ति इन चार परिस्थितियों में जिसके पास सुकृति है, has some pious credits, he will come and he will get this opportunity out of the four. Another important subject is explained in Srimad Bhagavatam 1.10.11. A person who is actually intelligent is able to associate with the pure devotees to hear about Lord Krishna and his activities. These activities are so attractive that when he hears of them, he does not give up the association of the Lord. This is we can practically experience. We started with a small program for a few days and then now we are continuing. So by hearing he develops a taste, and then his taste is so nice that he does not give it up. Okay? He doesn't give it up. And because he doesn't give it up, he gradually keeps on making progress. वो लगातार प्रगति करता रहता है भगवत धाम की तरफ। For him, all the other association is kaitava or cheating. Such a person knows very clearly that all other associations, all different forms, are just kaitav or cheating. That's what Srimad Bhagavatam says in the first verse. धर्म कैटवत्र. So everything is cheating. जो कोई भी चर्चा भगवान की शुद्ध भक्ति, भगवान की परम सत्ता का गुणगान नहीं करती है, वो वास्तविक रूप से चीटिंग है. It is a waste of time. And those who are like Swan or Paramahansa, they do not like to waste their time in such mundane affairs. कुंती महारानी बतलाती हैं, भगवान आपके चरण कमलों का ध्यान होना मतलब इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना. बाय रिमेम्बरिंग योर लोटस फीट. अब श्री प्रभुपाद जी ने भगवान के चरण कमलों के गुणगान किया, चरण कमलों का महत्व बतलाया. भगवान के चरण कमल इतने विशेष हैं. भगवान के चरण कमलों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, स्वर्ण रेखा सबका अंकित रहते हैं. और इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में लीला कर रहे थे तो जहां कहीं पर भी भगवान के चरण कमल पड़ते थे, वहां पर पूरे ब्रज का कोई भी व्यक्ति वापस चरण नहीं रखता था. They were all watch when they are walking. This may be very interesting. And nobody will step on that.
और मनुष्यों की तो बात क्या करना है, ग्वाल बाल की बात मत कीजिए। जो गाय और बछड़े हैं वे भी उन चरण कमलों के चिन्ह को बचा के चलती थी। When they were walking, they were protecting. उन चरण कमलों के चिन्हों से वो पहचान जाते थे that Krishna has gone this way. ठीक है, so they are so special. श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, भगवान शंकर वास्तविक रूप से इतने शुभ हैं, शिव ही शुभ है, राइट? इज ऑल ऑस्पिशियस दैट शिवा when he is taking the water of the lotus feet of Lord Sri Krishna in the form of Ganga, जब वो शंकर जी गंगा के रूप में भगवान के चरणों का चरणामृत अपने सर पर धारण करते हैं, तो वो वास्तविक रूप से और ज्यादा महान बन जाते हैं, अनलिमिटेडली. It becomes so auspicious because he is carrying the water from the lotus feet of Lord Sri Krishna. This is so special. The lotus feet of Lord Krishna are so divine कि जो भक्त गण भगवान के चरण कमलों का आस्वादन करते हैं, फिर वे भगवान के मुख कमल तक भी नहीं जाते हैं. They don't desire, they don't hanker also. श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, भगवान के चरण कमल एक जिस प्रकार से कमल के ऊपर भौरे जो है कमल के ऊपर मंडराते रहते हैं और उसका मकरंद, उसका जो रस है पान करते हैं, and they are attached with that. Similarly, the devotees of the Lord, वो भगवान के चरण कमलों से इतना आनंद, इतना रस प्राप्त करते हैं कि उनको छोड़ करके और कहीं पर भी नहीं जाते हैं और किसी भी चीज का ध्यान नहीं करते. It is to the extent कि स्वयं भगवान कभी कभी इस बारे में चिंता करने लगते हैं कि मेरे चरण कमलों का यह आकर्षण कितना अद्भुत है, ये संसार के सभी दुखों को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं. Actually, when there is some miseries, people pray. They want the relief. लोग दुखों से छुटकारा चाहते हैं, ये सामान्य बात है. परंतु भगवान ने देखा कि इतने बड़े बड़े दुख आने पर भी ये कोई प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं कि मेरे को बचाओ, मेरे को दुख दूर करो. जब प्रहलाद महाराज के ऊपर इतने बड़े बड़े दुख आ रहे थे, he never prayed. There is no mention in Srimad Bhagavatam कि प्रहलाद महाराज prayed that, oh Lord, please save me. No, he did not pray. He was constantly immersed in serving Krishna. That was his meditation. So, भगवान ने आश्चर्य किया कि मेरे चरण कमलों का इतना क्या आनंद है, और फिर इस कारण से भगवान ने स्वयं अपने चरण कमलों को चूस करके देखा कि मेरे चरण कमलों में कितना आनंद है. He himself. और ऐसा काम क्या कब करना पड़ता है, जब कोई नहीं देख रहा हो. आप कोई अपना कंप्यूटर नहीं अपने मुंह में डालोगे सबके सामने. So similarly, Krishna also he did that. You know Vatapatra Sai Krishna, you all know. He is lying on that leaf, banyan leaf, और उस पत्र के ऊपर में कृष्ण अपने पांव के अंगूठे को स्वयं चूस रहे हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि इसमें कितना आनंद है. ये सारे संसार मेरे चरण कमलों से इस दिव्य आनंद को प्राप्त कर रहा है, मैं भी करके देखूं ये आखिर होता कैसा है, व्हाट इट इज. तो कुंती महारानी इस बात को यहां पर कहती है कि हे भगवान, मेरे जीवन में इतनी सारी विपत्तियां आई, एक के बाद एक लगातार विपत्तियां आई, परंतु जब भी विपत्तियां आती थी तो हम आपका आश्रय लेते थे, एकमात्र आपका आश्रय लेते थे. वी वर टेकिंग शेल्टर ऑफ यू. हम आपका आश्रय लेते थे, आपको याद करते थे, आपका स्मरण करते थे. और चूंकि हम हृदय से आपको स्मरण करते थे, आप दया के कारण आते थे.
by your causeless mercy used to come. और जब आप आ रहे हैं, आपका दर्शन, आपका एसोसिएशन मिल रहा है, आपका संग मिल रहा है, तो वो जो परिस्थिति क्रिएट हुई थी वो तो हमारे लिए वरदान हो गई. इट बिकेम ए ग्रेट फॉर्च्यून फॉर अस बिकॉज दैट सिचुएशन अपीयर्ड इन आवर लाइफ. अल्टीमेटली व्हाट इज द आउटकम? परिणाम देखा जाता है ना. आई विपत्ति, परंतु परिणाम क्या मिला? परिणाम आपका संग मिला, आपके चरण कमलों का आश्रय मिला. ये परिणाम हुआ. दिस वॉज द आउटकम. बिकॉज दिस इज द आउटकम, अल्टीमेटली तो मेरा इतना बड़ा लाभ हुआ. इस बात को समझने की आवश्यकता है. यदि हमने धन को प्राप्त करके, यदि हमने सत्ता को प्राप्त करके, यदि हमने अच्छे पुरुष और स्त्री का संग प्राप्त करके और भगवान की भक्ति और भगवान के चरण कमलों को भूल गए, उनकी सेवा को शिथिल कर दिया, तो वास्तविक रूप से हमारा जो है सौदा लाभ का नहीं हुआ, नुकसान का हो गया. यदि आपने संसार में सैकड़ों करोड़ों रुपए भी कमा लिए और भगवान की भक्ति कम हो गई, भगवान की शरण कम हो गई, तो वो जो है आपके जीवन में सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य का उदय हो गया है. हम सोचते हैं कि यह सौभाग्य है, प्रभु बहुत अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज ग्रेट. यस, एवरीथिंग इज ग्रेट. मैं जब सिकंदराबाद मंदिर में ज्वाइन किया था, एक भक्त साइकिल पे 4 मीनार से आते थे हर संडे और सबसे पहले आ जाते थे, और हम सब उनको तारीफ करते थे, हम सब उनकी इतनी प्रशंसा करते थे. और कुछ वर्षों बाद भगवान की कृपा से उनको स्कूटर मिल गया, और स्कूटर मिलने के बाद मालूम पड़ा कि वो 6, साढ़े 6 बजे तक ज्वाइन कर रहे हैं. तो इतने व्यस्त हो गए. तो ये जीवन के सभी के जीवन में ऐसा है. तो यदि किसी भी कारण से, भले ही वो बाहरी दृष्टि से अच्छा दिखता हो, परंतु वास्तविक दृष्टि से वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है. अच्छा तब है जब हम, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि धन की प्राप्ति बुरी है, परंतु धन की प्राप्ति होने पर हम भगवान के चरणों से जो दूर हो जाते हैं वो बुरा है. हमारा रिएक्शन बुरा है, हमारा एक्शन बुरा है. ठीक है. इसलिए आवश्यकता है कि उस समय पर भी हमको ये समझने की आवश्यकता है कि ये सारी सुविधाएं भगवान ने प्रदान की है भगवान की सेवा को बढ़ाने के लिए. इसलिए भगवान ने सुविधाएं प्रदान की है. श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, बड़ी कंपनियों में अपने एम्प्लॉय को लोग हेलीकॉप्टर दे देते हैं. हेलीकॉप्टर इसलिए दिया कि वो कंपनी की सेवा और अच्छी कर सके, वेरी नाइसली. उसके टाइम का इतना वैल्यू है. परंतु वो हेलीकॉप्टर इसलिए नहीं दिया कि आप स्विट्जरलैंड और होनालुलु घूमने के लिए निकल जाओ, इसलिए नहीं दिया. और हम ये कार्य कर रहे हैं. भगवान ने हमको इतनी सुविधाएं दी, रहने के लिए अच्छा घर दिया, गाड़ी दी, सारी सुविधाएं दी, पत्नी है, नौकर है, सब है, और हम उन चीजों में इतने व्यस्त हो गए, उनका दुरुपयोग करने लगे, उपभोग करने लगे अपने भौतिक आनंद के लिए. We are trying to exploit those things, those facility, so much so कि अब हमारे पास भगवान की भक्ति के लिए भी समय नहीं बचा. हम एहसान करते हैं, प्रभु हमने इतना कर दिया. Yes, so this has to be understood. कुंती महारानी बतलाती हैं, जो भक्त हैं, अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज पूरे दुनिया के सम्राट थे, परंतु उन्होंने सारी सुविधाओं का उपयोग एकमात्र भगवत भक्ति के लिए किया. They just kept on increasing their services to the lotus feet of the Lord. इसलिए कुंती महारानी इस विषय को प्रकट करती है, यहां पर इसको स्पष्ट करती हैं. बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है यहां पर. श्रीमद् भागवतम में बताया गया तीर्थ पद, भगवान के जो चरण कमल है वे तीर्थ पद है. सारे तीर्थ उन चरणों में निवास करते हैं. ऑल द तीर्थस,
सारे तीर्थ उन चरण कमलों में निवास करते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि तीर्थ यात्रा जाना वास्तविक रूप से एक भ्रम है। वास्तविक तीर्थ तो भगवान की सेवाओं को बढ़ाने में है। दैट इज रियल ऑस्पिशियस तीर्थ, क्योंकि सारे तीर्थ भगवान के चरणों में निवास करते हैं। इसलिए भगवान की सेवा करना वो वास्तविक तीर्थ है, वो तीर्थ में रहना है। तीर्थक करंती तीर्थाणी, वो तीर्थों को सार्थक तीर्थ बनाते हैं भगवान और भगवान के भक्त। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जहां कहीं पर भी उनके चरण कमल पड़े हैं, वो स्थान तीर्थ हो गया, वो स्थान पवित्र हो गया, क्योंकि वो अपने हृदय में भगवान को लेकर के चलते हैं। तो हमारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न वैष्णव मोरे प्राण। आपके हृदय में सदैव गोविंद विश्राम करते हैं, गोविंद आपके हृदय में निवास करते हैं। इसलिए आप जहां कहीं पर भी जाते हो, वही स्थान तीर्थ बन जाता है। वही स्थान, that place becomes pure, auspicious, all purifying। श्रील प्रभुपाद जी बौरी में रुके, जो वहां की इतनी गंदी जगह थी, और वो पवित्र हो गई। So such devotees of the Lord, they purify everything and everyone. How they purify? Because they are carrying the same lotus feet of the Lord. वे भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में रखते हैं। इस कारण से वे सारे संसार को ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, ऐसे भक्त पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हैं। ऐसे भक्त पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हैं। माता देवहूति ने यह बात कही। माता देवहूति कहती है पृथु महाराज को, बोट ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, मेटेरियल डिजायर्स आर लाइक शार्क तिमिंगला। ये भौतिक इच्छाएं जो हैं, जैसे अभी हमने समुद्र का उदाहरण दिया, समुद्र में हम गिरे हुए हैं, तैर के पार करना है, परंतु उसी समुद्र में बड़ी बड़ी शार्क मछलियां हैं, बहुत भीषण पैने दांत वाली। क्या हम उनसे अपने आप को बचा सकेंगे? दे विल डिवोर अस। वो हमको निगल जाएगी, चबाएगी भी नहीं, चबाएगी भी नहीं। जैसे मोबाइल आपको निगल जाता है, 3 घंटे कब निकल जाते हैं मालूम नहीं पड़ता किसी को, राइट? Everyone has the experience. This TV and this mobile, how they eat you up, nobody knows. और भगवान की भक्ति में मंदिर में 1-1 मिनट का हिसाब रखते हैं लोग, 1-1 मिनट का। प्रभु मेरे को जाना है, मेरा टाइम हो गया, 1-1 मिनट का हिसाब रहता है। So this is our attitude. But we need to understand, कुंती महारानी की प्रार्थना अत्यंत हमारे लिए रिलीवेंट है। कोई भी वो परिस्थिति जो हमको भगवान के चरण कमलों की याद करवाती है, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के लिए प्रेरित करती है, ऐसी परिस्थिति है, वो परिस्थिति हमारे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। दैट इज रियल ऑस्पिशियस, दैट इज रियल ऑस्पिशियस because we are remembering Krishna. And any situation where we tend to forget, यदि हम भगवान को भूल रहे हैं, तो वो हमारी सिचुएशन, हमारे जीवन के लिए शुभ नहीं है, वो वास्तविक रूप से अशुभ है। शुभ और अशुभ का यही अंतर है। इस परिभाषा के ऊपर हमको जीवन में शुभ और अशुभ का निश्चय करना चाहिए, नॉट अदरवाइज। दिस इज व्हाट कुंती महारानी सेज, विपदा संतु स्वतंत्र तत्र जगत गुरु। बार बार वैसी विपत्तियां भी जीवन में श्रेष्ठ हैं, जिनमें मैं आपके चरणों का और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा आश्रय लेती हूं, नजदीक आती हूं, आपका दर्शन प्राप्त करती हूं,
वही शुभ है, वही श्रेष्ठ है, अन्य सब व्यर्थ है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।